सुभान मुफ्ती तनवीर साहब किबला तवज्जो की तालिब हूँ। डाकें जदि दयाल नबी যাব মদিনায়, ডাকেं जदि যাবেন না? সবারই মনের বাসনা মদিনা, সবাই যেতে চায়। কার মনে আশা নেই? সকলেরই আছে। হে বেরাদার, কই বলছেন হাজী সাহেব? ডাকেं যদি দয়াল নবী যাব মদিনায়, ডাকেं যদি দয়াল নবী যাব মদিনায়। ঝড়ি তুফান যতই আসুক, ঝড়ি তুফান যতই আসুক, নাই যে আমারি ভয়। নবীর নামে দরুদ পড়ে, নবীর নামে দরুদ পড়ে, মদিনার ওই জালি ধরে। নবীর প্রেমে সওয়ারি হয়ে, নবীর প্রেমে সওয়ারি হয়ে পৌঁছাবো মক্কায়। ডাকেন যদি, বলেন আমার সঙ্গে বলেন, ডাকেন যদি দয়াল নবী যাব মদিনায়, ডাকেন যদি দয়াল নবী যাব মদিনায়। ঝড়ি তুফান যতই আসুক, নাই যে আমারি ভয়। ঝড়ি তুফান যতই আসুক, নাই যে আমারি ভয়। নবীর নামে কলিমা পড়ে, মদিনার ওই জালি ধরে। নবীর প্রেমে সওয়ারি হয়ে পৌঁছাবো মক্কায়। ডাকেন যদি দয়াল নবী যাব মদিনায়, ডাকেন যদি দয়াল নবী যাব মদিনায়। কই বলছেন? মদিনাতে যেতে রাজি, মদিনাতে যেতে রাজি, তবু সাথে নেই না হাজি। হাজি সাহেব, মদিনাতে যেতে রাজি, মদিনাতে যেতে রাজি, তবু সাথে নেই না হাজি। তাই তো তোমারি রওজা চুমারি, তাই তো তোমারি রওজা চুমার, মনে তুফানে বয়। ডাকেন যদি দয়াল নবী যাব মদিনায়, ডাকেন যদি দয়াল নবী যাব মদিনায়। ওলামাদের মুখে শোনা, ওলামাদের মুখে শোনা, রওজা চুমলে মাফ হয় গুনাহ। ওলামাদের মুখে শোনা, ওলামাদের মুখে শোনা, রওজা চুমলে মাফ হয় গুনাহ। তাই তো তোমারি রওজা চুমার, মনে তুফানে বয়। ডাকেন যদি দয়াল নবী যাব মদিনায়, ডাকেন যদি দয়াল নবী যাব মদিনায়। গজলটা বিশাল লম্বা চওড়া আছে, শেরে আখির আমি আপনাদের সামনে পেশ করছি। বলি তো সুবহানাল্লাহ, হাত উঠে বলি ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ। গজলটা সেটা শুনবেন? হ্যাঁ শুনবেন তো? মাশাআল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, আপনারা শুনতে রাজি আছেন, মন খুবই ভালো লাগছে। আজকের এই সভা, মা বোনদেরকে বলছি, মা আপনারা বাড়িতে থাকেন না, আজকে শুধু বাংলা আর বাংলা আওয়াজ হবে। বলি তো সুবহানাল্লাহ। আমাদেরকে বলে থাকে মা সাহেব খালি উর্দু হয়, বাংলা হয় একটু, মাঝে সামাইন, তার জন্য আজকে বাংলা রজনী রেখেছি। আজকের রাত বাংলা রজনী রাত হবে। সুবহানাল্লাহ। আজকে বাংলার বিখ্যাত বক্তা এসে উপস্থিত হয়ে গিয়েছেন। বলি জোরে সুবহানাল্লাহ। মাঝে সামাইন। টাকা পয়সা নাই যে আমার,
পয়সা নাই যে আমার, কলেমা শুধু আছে তোমার। এই বুঝতে যাব আমি তোমারি রোজাই, ডাকেন যদি দয়াল নবী যাব মদিনায়, ডাকেন যদি দয়াল নবী যাব মদিনায়, ডাকেন যদি দয়াল নবী যাব মদিনা। इंशाल्लाह उर्दू হবে। खुदा की सल्तनती का दो जहां में कौन दोला है, तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, यहाँ तुम हो वहाँ तुम हो। खुदा की सल्तनती का दो जहां में कौन दूल्हा है, तुम ही तुम हो या रसूल अल्लाह। माँ बोलेगा बोलছি মা আপনারা বসে বলুন। ले जाऊंगा, कोई मुझसे बात नहीं करेगा, कोई मुझसे, मैं किसी से बात नहीं करता। और मेरी तीसरी शर्त ये है, जब मस्जिद की अजान की आवाज आएगी हय्या अलैस सलाह, तो मैं काम को छोड़ दूंगा। आज के जमाने में कोई ऐसा मजदूर है, आज लोग नमाज पढ़ने के लिए बहाने पे बहाना करता है। कोई कहता है कमर में दर्द, कोई कहता है कि पेट में दर्द, कोई कहता है टखनों में दर्द, कोई कहता है कि सर में दर्द। कितना बहाना करते रहोगे? कुर्बान जाओ गौसे आजम के मजदूर, गौसे आजम के जमाने का मजदूर पर कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर। मजदूर कहते हैं जब मस्जिद से हय्या अलैस सलाह की आवाज आएगी मैं काम को छोड़ दूंगा। अल्लाह अकबर। वो मजदूर काम करने के लिए आते हैं, ऐसा ही काम करते करते जोहर की अजान की आवाज आती है, वो मजदूर काम छोड़ देता है। काम छोड़ने के बाद सीधा मस्जिद जाता है और खुशू और खुजू के साथ नमाज को अदा करके आता है। अदा करने के बाद मुहद्दिस इब्न जौजी खाने के लिए बैठे थे, पहले लुकमा ले रहे थे और कहा कि एक मजदूर मेरे घर में काम कर रहा है। अरे हर मजदूर तो नाश्ता दाल लेकर आता है, कोई हर मजदूर तो खाना साथ में लेकर आता है। ये मजदूर बहुत गरीब होगा कि इसके पास खाने का टिफिन भी नहीं है, नाश्ता भी नहीं है। बोले कि ए मजदूर खाना खा लो, ए मजदूर तुम खाना खा लो, तुम्हारी मजदूरी से मैं कुछ नहीं काटूंगा। अल्लाह अकबर। जैसे ही मुहद्दिस इब्न जौजी फरमाते हैं, जैसे ही मजदूर से मुहद्दिस इब्न जौजी ने कहा कि खाना खा लीजिए, मजदूर की आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो गया और वो फूट फूट कर रोने लगे। बोले कि मजदूर क्यों रोते हो? मैं तुम्हारी मजदूरी से कुछ पैसे नहीं काटूंगा। बोले कि ए मुहद्दिस इब्न जौजी, मैं जब किसी के यहाँ काम करने के लिए आता हूँ तो रात में मैं रोजी की नियत कर लेता हूँ। आज के दौर में देखिए रमजान का महीना जैसे शुरू हुआ लोग तरह तरह की बहाना करते हैं। लोग की सेहत ठीक है, तंदुरुस्त है, तो लोग मेरा ये खराब है, मेरा वो। आखिरी जुमला मुख्तसर जहां तक पहुंचाना चाहता हूँ, मेरी बात समझिए, बहुत से बोले सुभान अल्लाह। वो मजदूर कहता है अल्लाह अकबर। जैसे काम पूरा हुआ मुहद्दिस इब्न जौजी फरमाते हैं कि मैंने देखा कि दो आदमी मिलकर जितना काम नहीं कर पाया वो मजदूर चंद मिनट में, चंद घंटे में उससे ज्यादा, दो आदमी से ज्यादा काम कर दिया। अल्लाह अकबर। वो कुछ दिन के बाद अल्लाह अकबर जब काम करके वो मजदूर जाने लगा तो मुहद्दिस इब्न जौजी कहते हैं ए मजदूर फिर कल काम करने के लिए आओगे ना? तो मुहद्दिस इब्न जौजी उस मजदूर से कहते हैं ए मजदूर कल काम करने के लिए आओगे ना? तो मजदूर कहते हैं मुहद्दिस इब्न जौजी आपको मुहद्दिस कौन कहता है? आपको मुहद्दिस कौन कहते हैं? मुहद्दिस इब्न जौजी कहते हैं पूरे बगदाद के लोग मुझे मुहद्दिस कहते हैं, मैं कहता हूँ मैं मुहद्दिस हूँ। बोले आपको पता है क्या कल आप कहाँ रहेंगे?
कल आपकी जिंदगी के साथ क्या होगा, कल आप कहाँ रहेंगे पता है क्या, कल मैं कहाँ रहूंगा मुझे पता है क्या, तो मुझसे कल का वादा आप कैसे ले रहे हैं। अल्लाह अकबर। वो मजदूर चले जाते हैं, जाने के बाद जब दूसरा दिन उस मुहद्दिस इब्न जौजी, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलियाए कराम, फैजाने गौसे आजम। মা বন্ধুদেরকে বলবো, এই যে আপনাদের বাঁ পাশের রাস্তাটা, আপনারা ওই দিক দিয়ে হয় প্যান্ডেলের মধ্যে আসবেন, এই সামনের রাস্তা এখান দিয়ে বাবারা আসবেন, আপনারা ডান পাশের রাস্তা দিয়ে আপনারা প্যান্ডেলের মধ্যে আসবেন। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্लाह। मुहद्दिस इब्न जौजी कहते हैं मैं दूसरे दिन उसको तलाश करने के लिए वहां गया जहां मजदूर मिलता है, सारे मजदूर थे, वो मजदूर नहीं था। मैंने जब दूसरे दिन तलाश किया, तीसरे दिन तलाश किया, तो वह मजदूर वहां पर मौजूद नहीं था। मैंने पूछा कि वह मजदूर कहाँ चला गया, किसी ने कहा वो मजदूर बिस्तर अदालत पर है, वो मजदूर जिंदगी और मौत के बीच में है। अल्लाह अकबर। मुहद्दिस इब्न जौजी पूछते हैं कि वो मजदूर कहाँ रहता है, किसी ने कहा कि कब्रिस्तान के बगल में अपना आशियाना बनाया हुआ है, अपना झोपड़ा बनाया हुआ है। अल्लाह अकबर। मुहद्दिस इब्न जौजी जब उससे नमाज, मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद उससे मुलाकात के लिए पहुंचे तो देखते हैं दरवाजे, मुहद्दिस इब्न जौजी उसके दरवाजे के दस्तक दे तो सोच रहे थे कि दरवाजा खुला है कि बंद है, तो इतने में आवाज आई, ए मुहद्दिस इब्न जौजी आइए दरवाजा खुला है। मुहद्दिस इब्न जौजी कहते हैं कि उस टाइम मैं तो कोई खत लेके नहीं आया था, आपको कैसे पता चला कि मैं मुहद्दिस इब्न जौजी आया है? क्या फोन का जमाना भी नहीं था, मैं आपको फोन भी तो नहीं किया था, आपको कैसे पता चला कि मुहद्दिस इब्न जौजी आपसे मिलने के लिए आए हैं? वो मजदूर कहता है जब भाई गरीब होता है, जब भाई बिस्तर अदालत पर होता है, जब भाई बीमार होता है, तो सगे भाई उससे मुलाकात के लिए नहीं आते, पड़ोसी उससे मिलने के लिए नहीं आते। अगर बगदाद में कोई किसी का ख्याल रखता है तो वो मुहद्दिस इब्न जौजी है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। मुहद्दिस इब्न जौजी उस मजदूर के दौरान बात हुई, बात होते होते वो मजदूर कहते हैं कि मुहद्दिस इब्न जौजी कल मेरी 2 शर्त मान लेना। बोले क्या 2 शर्त है? बोले कल इंतकाल हो जाऊंगा, कल मेरी सांसें बंद हो जाएगी, कल मेरी रूह निकल जाएगी, कल मेरी आंखें बंद हो जाएगी, तुम आने के बाद मुझे कफन पहना देना, गुस्ल दिल देना और मुझे मिट्टी के हवाले कर देना। और दूसरी शर्त मेरी ये है, ये अंगूठी लो और ये अंगूठी ले जाकर कल जैसे ही कल इधर से बादशाह हारून रशीद इधर से जाएंगे उसके हाथ में अंगूठी दे देना। अल्लाह अकबर। सुबह हुई, आवाज आई, वो मजदूर इंतकाल हो गया है, उसकी सांसें बंद हो गई है, उसकी रूह निकल गई है, उसकी जिंदगी खत्म हो गई है। मुहद्दिस इब्न जौजी आते हैं, उसे मिट्टी के हवाले कर देते हैं। उसकी नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद वो रास्ते में खड़े हो जाते हैं। रास्ते से हारून रशीद उसी रास्ते से गुजर रहे हैं। वो कहते हैं ये हारून रशीद रुक जाइए, रुक जाइए। बादशाह रोकते हैं। मुहद्दिस इब्न जौजी कहते हैं ये अंगूठी बादशाह के हाथ में देते हैं। बादशाह के हाथ में जैसे अंगूठी दी, जैसे अंगूठी देना था, बादशाह फूट फूट कर रोने लगे, आंसुओं का सैलाब जारी हो गया। मुहद्दिस इब्न जौजी कहते हैं कि ए हारून रशीद, मैंने आपको अंगूठी दी, रोने का मतलब क्या है? आपने अंगूठी के अंदर क्या देखा? हारून रशीद कहते हैं ए मुहद्दिस इब्न जौजी, ये मजदूर कोई और नहीं, ये मेरा छोटा बेटा था। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। ये इस्लाम के खातिर बादशाहत को छोड़ दी, दीन मुस्तफा की खातिर दौलत को लात मार दी और गुर्बत में जिंदगी गुजार दी। और बरेली से आवाज आई, मुजरिम को ना शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देखकर क्या होगा, पर्दे में भलाई है। मुंह देखकर क्या होगा, पर्दे में भलाई है। आज लोग नमाज के लिए कितना बहाना करते हैं, आज लोग दौलत के पीछे भागते हैं। अरे सूद के नाम पर पैसा आता है तो आने दो, जुआ के नाम पर पैसा आता है तो आने दो, लॉटरी के नाम पर पैसा आता है तो आने दो। अरे आपको
जुआरी नहीं बनना है, शराबी नहीं बनना है, आपको आशिक रसूल बनना है। क्योंकि जब आशिक रसूल बनकर जाएंगे तो कहेंगे कब्र में लहराएंगे हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सर को जो अपने नमाजों में झुका देते हैं, सर को जो अपने नमाजों में झुका देते हैं, तो उसे सरकार मदीने में बुला लेते हैं, तो उसे सरकार मदीने में बुला लेते हैं। बोलने के दौरान कोई गलती हो, आपको तकलीफ पहुंची हो, तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व तुब अलैहि। एक हमारे मामा ने 50 रुपए दान किया, अल्लाह ताला इस दान के सदक़े में अल्लाह ताला उनकी जिंदगी में बंदगी अता फरमाए और उन्हें शरीयत मुस्तफ़ा पर अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे मामा भी ला रहे हैं माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। साहब, हमारे मामा जो रात और दिन मेहनत करके इस इदारे की मेहनत में, लोग तो अपने लिए जीते हैं, कोई अपनी औलाद के लिए जीते हैं, कोई अपने रिश्तेदारों के लिए जीते हैं, लेकिन हमारे मामा को मैं देखता हूँ, जब से मैंने होश संभाला है तब से मैंने दारुल उलूम गुलशन रजा के लिए रात और दिन को गुजरते हुए देखा है। सुभान अल्लाह।